ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਧਨ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ 1935 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਿਖੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਕਰਨਲ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਤੇ ਅਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਗੁਰਮਹਿਕ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿਖਾਂ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਤਾਬ ਮੁਖ ਸਭ ਜਾਵੀ हर हर तेरा नाम है हर हर तेरा नाम है हर हर तेरा नाम है वाहिगुरु 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 हर
की पीठ पवनता रंग रंग बूंद का रंग बूंद का जल की पीठ पवनता रंग रंग बूंद का साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा राखो कंध सारो नीवा साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा की बात पाग सिर मेरी के तन हुए वो बसम की मेरी के तन हुए वो बसम की मेरी ऊंचे मंदिर सुंदर नारी ऊंचे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी राम नाम बिन
बहुत जन्म विश्रे थे मातवा के जन्म तुम्हारे लेखे जुगो जुगटल सतगुरु जी तन ग्रंथ साहिब जी पवित्र हजूरी अंदर अज आपा सरकार जो माता जी माता गुरनाम कौर जी धर्मस्थली सर्ववासी सरदार हरबंस सिंह जी तिना दी आत्मा शांति वास्ते तिना दे पुत्र सरदार बलदेव सिंह जी मोमी कर्नल हरदेव सिंह जी मोमी समूह परिवार वालों गुरबाणी का पूर्ण आसरा लेकर होया श्री सुखमनी साहिब के जाप करवाए गए उपरंत सतगुरु जी वालों दसी हुई गुरमर्यादा है एक जरूरी मर्यादा जो धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी बख्शिश करके आए सुखमनी साहिब जी के बाद आप जी ने जो रामकली सदबाणी सरवण की है ये बाणी धन गुरु अमरदास साहिब जी के अंतिम समय के वचन ने जो एक मर्यादा तहत सतगुरु जी बख्श गए हैं क्योंकि महाराज जी जो सचखंड को बयाना कर लगे ने गोविंदवाल साहब की धरती ते सतगुरु जी ने परिवार के नाल वचन कीते वो वचन की ने सतगुरु जी आखदे ने सतगुर भाणे अपने बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं भूल ना पाया ये साडे जान के बाद कोई भी रोयो ना ते संगतां ने फिर वचन कीता महाराज जे रोइए ना फिर करिए की ते महाराज आखदे ने मित पंजे मित विक्षे जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो बुत पाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु प्रत्यक्ष होते बहराज आप दिखाया सब सिख बंदत बुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुरु बोलिया की बोले सी महाराज जी मैं पीछे कीर्तन करूं दरबार जी एक मर्यादा बच गए ने कि
कि विश्री ही आत्मा के निमित्त हर जस गुरबाणी के कीर्तन की मर्यादा बहुत जरूरी जो मर्यादा है कि कीर्तन होना चाहिए है। उस मर्यादा के तहत आप जी विश्री हुई आत्मा को श्रद्धा के फुल भेंट कर रहे हो। सतगुरु की कृपा कर बड़ी सोहनी बाणी का फल विश्री हुई आत्मा को सत्कार जो माता गुरनाम कौर जी को पहुंचाउण अपने सुख चरणों में सदीवी का निवास बख्श कर। सरदार बलदेव सिंह की भूमि अते कर्नल हरदेव सिंह की भूमि समूह मोमी परिवार बड़ी ही महाराज की कृपा है। सारा परिवार गुरु घर नाल लिया हुआ परिवार है। इस करके बड़ी अपार कृपा है। सरदार हरप्रीत सिंह की भूमि सतगुरु जी की रहमत है। जदों भी कितने बच्चों को ढिल बन होवे ते डॉक्टर साहब को लेके जाइदा है ते होरां नूं भी यही तकीद करीदी है कि उन्हां दे हाथ में बड़ी बख्शिश है। क्योंकि कई बच्चे साल साल असीं भी जदों छोटे छोटे सी साडे पिताजी ने नाल लेके जाना डॉक्टर साहब कोल ते बड़ा पिठ बोलड़ा सुभाअ डॉक्टर साहब दा अदा ते उन्हां दा साथ संगी जदों वो कह देते हैं बस ठीक है ते उन्हां दे बोल विच ही शक्ति है कि ठीक हो जाते हैं। ते सतगुरु जी की कृपा है। साथ संगी मैंने बचपन याद आ गया। बचपन विच एक बारी मैं ना 2 रुपए का सिक्का कितने गले में खा लिया। वो जाके सीधा गले च अड़ गया। पिताजी ने नाल दवा दवा जाके डॉक्टर साहब को लाए ते उन्होंने जदों वेख्या ना कि गले तो थले उतर गया ते कहण लगे पिताजी सारा डर गए। कहण लगे कि कोई खतरे की गल ना। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं होना, खतरा नहीं, बस जेड़ी चीज गले तो थले उतर गई वो समझो हुण बचा हो जाए। ते जदों भी किते ढिलमट हुई इसे तरह डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी मूमी साहब उन्हां दे कोल साडे छोटे छोटे बच्चे ने 2.5 साल का मेरा बेटा जदों भी कोई होवे कई बार वड्डे हस्पताल जाइदा ते डॉक्टर साहब की पर्ची भी बनाउण दी लोड़ नहीं। उदां ही बस एक साथ संगी जिवें प्यार की गल है वो भी इन्ना सत्कार दिंदे ने कि गुरु घर दे के वजीर ने ग्रंथी ने उसे दे तहत एक पर्ची ते दवाई लिख के देने जाओ बाबा जी ले लो दवाई। ते जदों किते हस्पताल में जाइए उत्थे भी कई बार फीस भी नहीं लेंदे। इस करके सतगुरु जी दी बड़ियां बख्शिशां ने रहमतां ने ये सारी कुछ सासना जिहड़ी दात दी है देण हुंदी है ते माता पिता दी बख्शिशां नाल उन्हां दी अरदासां दे नाल ते पौधे मिलदे ने। सासना जी इस करके मां दी देण माता पिता दी देण बंदा सारी उम्र नहीं दे सकदा। कि अज आपां माता जी दी याद विच जुड़ के बैठे हां। महाराज जी कृपा कर उन्हां नूं सदीवी काल सुख चरणां दा निवास बख्श कर। राम मैया मुबारक तेरा काहे नाखंड शब्द मेरा। कबीर साहब जी ने भी मां की पथाई शब्द प्रचार दिता कह दिता मां मैं जदों छोटा जिहा सी बचपन विच अनेकां गलतियां करदा सी ते कई बारी तू झटका मारदियां ते कई बार सोटी भी चुक लैनी मेरे 2-4 ला भी देनियां ते मां कमाल की गल सी जदों तू मारदी सी किदां लगदा सी जिवें मक्खण दे पेड़े खिलाउंदी होवे ते जदों झटकना इदां लगना जिवें किते लोरियां दिंदी। क्योंकि मां ना के दिलों बच्चे नूं मारदी ना ही दिलों झटकदी है। जे अति क्रोध करे करताया तां भी जीत ना राख समाया। जन्म देण वाली जननी अपने चित ते नहीं लाउंदी सी। ते कबीर साहब जी सासना जी रब नूं मां दा दर्जा दिंदे ने कहंदे ने वाहिगुरू परमात्मा जी वाहिगुरू जी मैनूं लगदा तुहाडा सुभाव ही मेरी मां वर्गा होवेगा। क्योंकि जिवें बचपन विच मेरियां अनेकां ही गलतियां ते मां पर्दा पा दिंदी सी। मैनूं झड़कना भी फिर फुट के गलवकड़ी विच लै लेना ते बड़ा प्यार देना कहना मेरा सोहना पुੱਤ। ते जे किते जिवें बच्चे बाहर खेडदे आ मुंह सिर लपेट लेंदे ने ते कई बारी प्यार विच कहना भी बूठा दा सवार लै सारा लिबड़िया तगड़िया किवें आ गया ते हथी नमाउणा प्यार करना बड़ा। इसे तरह कबीर साहब जी कहते हैं
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਅਬ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖਰੇ ਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾਵਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁਣਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਬਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਮੋਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ, 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਉਮੀਦ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਉਮੀਦ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਉਮੀਦ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ।
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी चंद्रमा में चरदास में तेरा निबानी के प्रमाण हम देहा जी लिखिया देहा हुक्म कमाए कभी आवे नानका सबे उठी जाए ने महला काम सावधान करें प्रीतमान माता गुरनाम कौर जी धर्म पत्नी स्वर्गवासी सरदार प्रभात सिंह जी सतगुरु छे पातशाह बिना दी आदमी श्याम जी होनी कल्याण आवास में तेरा दे स्वर्ग डॉक्टर बलदेव सिंह जी मूवी करना बलदेव सिंह जी मूवी समूह परिवार वालों सतगुरु छे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणों का आसरा लेंदे होया आप जी की अलाही बाणी थोड़ी की बाणी आई है संगीत जिन पिताई साईं सुखमनी साहब जी ने जाप करवाए राम करी साधे संजाप हुए ने सतगुरु छे पातशाह ने तलाक बाणी का कीर्तन होया शब्द चौकी आनंद साहब जी की अरदास पावन पवित्र गुरबाणी ने जाप करते हैं कीर्तन करते हैं सेवा निभाते हैं बेअंत अल्लाह या पुरा चुका दी माफी बख्शनी जी अगे तो इस वक्त बख्शिश करनी है बड़ी गुरबाणी का भाव श्री आत्मा माता गुरनाम कौर जी को बख्शिश करना माता गुरनाम कौर जी को सेव करनी अपने चरणों में चलवास बख्शिश करना पीछे परिवार से सुख शांति नाम की दात चाहनी कला को सच्ची जीवन सेवा संबंधी दात बख्शिश करनी बच्चे ने सिर पे मेरे पर याद रखना रुपये आज्ञान के दान सतगुरु से पातशाह बख्शिश करने परिवार से सुख शांति बख्शिश करनी जी सेवका वालों आपके सोने माध्यम माया सेवा की गई है सतगुरु से पातशाह लोग लोग सेवका में करते कदमे खजाने करते करने करने पिछली आत्मा ने हुए सेवका वालों आपकी निकुरियत देश प्रावतन आदि सेवा की गई है सेवा प्रवाह करनी सतगुरु से पातशाह सेवका वालों गुरु का वास्ते 21,000 रुपये की सेवा की गई है सेवा प्रवाह करनी शुक्राने में निवासी दिन करा प्रसादी दे तो धीरे लंगर हाजिर है प्रवान को में प्रवाने प्रसाद साथ संगत चुनौतियों दिया गया बख्शिश करो बेअंत संताने आदि ने दाती हाजिरियां करियां साथियां हाजिरियां प्रवान करनियां कदम कदम लेके विच लाना सबने परिवारां में देह होता तंदुरुस्तियां नाम दियां दाता बख्शिश करनियां जे पातशाह जी कृपा करो आप अपने पावन पवित्र हुक्म बख्श के निहाल करो सही गुरु प्यारे मिलो जिना मिलदे आ पावन पवित्र नाम चिते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सबदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्वर्ग अल्लाह नाम जो नरक में तुम नहीं मानना है सौत समय वर भय नहीं जाकर कंचन माटी मानना है जो नरक में तुम नहीं मानना है सौत समय वर भय नहीं जाकर कंचन माटी मानना है नैन ध्यान प्रस्तुत जाकर लोग हो अभिमाना हर कसोग तेरे ध्यान नाहे माने अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे जगते रहे निराशा काम क्रोध जे बरसे नाहन ते घट ब्रह्म निवासा कृपा जे नर को कीनी ते जुग तप छाने नानक लीन भयो गोविंद सिंह क्यों पानी संग पानी गुर कृपा जे नर को कीनी ते जुग तप छाने नानक लीन भयो गोविंद सिंह जो पानी संग पानी वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह आपे हरि करंग है आपे बोलगी जोत सुभावे नानका साई का चंगा बहुत ही सत्कारयोग माता गुरनाम कौर जी सपुतनी स्वर्गवासी सरदार हरबंस सिंह जी की आत्मा की शांति लई जो पिछले दिन परिवार को सतीरी विछोड़ा ले गए सन गुरुद्वारा साहब विखे गुरुद्वारा साहब के कीर्तन रचाया भाई साहब भाई लालजीत सिंह नूरपुरी जिन्होंने बहुत ही राग में कीर्तन करके संतान गुरुचरणा जोड़िया है सतगुरु बख्शिश कर परिवार वालों गुरुद्वारा साहब विखे श्री सुखमनी साहब पाठ पुराण आदर्श कीर्तन हुए हैं सतगुरु कृपा कर इस पानी का भाव पानी का फल पिछली आत्मा
सरकार जो माता गुरनाम कौर जी को बख्शिश कर अपने चरणों में सलीमी काल निवास बख्शिश कर गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वर माता जी को भैनों बीबियां ने जो सतगुण बख्शिश की है गुरु का दर्जा दिता है सब तो ऊपर मां की सेवा है मां की सेवा गुरु की सेवा नाल ऊपर है जो माता पिता की सेवा करते हैं उन्होंने सतगुरु बख्शिश करते हैं उन्होंने हर थां से सतगुरु कृपा करके हथ दे के रखते हैं इस संबंध में सरदार डॉक्टर बलदेव सिंह मोमनी कर्नल हरदेव सिंह जी मोमनी इस समूह परिवार वालों माता जी जो मत विचारानुसार परिवार वालों सारे समाज करते गए हैं सुखमनी सारे पाठ अरदस कीर्तन पावन पुत्र लड़ाई हुक्म की बख्शिश किया है जो ना दुख नहीं मानना सुख स्नेह पैरी जाके कंचन माटी मानना फिर जे करना हो जान की अरदास नानक गुरु गोबिंद का पूर्ण गुरदास सतगुरु चरणा अरदास में सब कृपा कर पिछली आत्मा अपने चरणों में समास बख्शिश कर अच्छे परिवार को चढ़ती कला पाना होना का बख्शिश कर मैं समा बहुत ही जाना मैं बेनती करांगा बहुत ही सत्कारयोग सारे इंजीनियर सभ्या से उन्होंने बेनती है जो भाई समय धन्यवाद करने सारी संगतों माता जी ने पिछड़ी आत्मा गुरु श्रद्धा को लपेट करके इंजीनियर सभ्या से गुरुपति साई करिए माता जी संसार से नहीं रहे काफी लंबी उम्र भोग के गए हैं सुखी गए हैं बड़ा पाठ पराशर के गए हैं ऐसा समय कोई बच्चा मां के पेट से मर जाता कोई 5 साल का 10 साल का कोई लंबी उम्र भोग के जिदा की मौत होती उदा का अपना दुख होता गुरु नानक देव जी महाराज स्वर्ग आगे लिखते हैं ये दुख के बारे में उन्होंने लिखा दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सख्त वार जमदूत ये जिहड़ा विछोड़ा है मौत रूपी विछोड़ा इन बाबा जी ने दुख क्या है बंदा किसी भी उम्र के इस संसार पर जावे ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ क्योंकि मुड़ के मिलन की संभावना नहीं बनती माता जी बेशक उम्र भोग के गए हैं इस संसार का दिखाई असं उन्हें मिलना फिर असं कभी मिल नहीं सकते इस करके पहली बार से बहुत बड़ा दुख समझते मैं थोड़ा सा बहुत समझ लो डॉक्टर लोग बैठे ने स्पेस साहब मां की गल करते सी देखो आप समाज से औरतों पर बड़ा सरकार करते हैं औरत धी भी है औरत भैन भी है औरत पत्नी भी है औरत मां भी है हर रूप से औरत का सरकार है पर जो मां का रूप है ये बहुत बड़ा रुतबा है बहुत बड़ा अहदा है क्योंकि मां जो बच्चे को जन्म देती है उदों ही मां बनती है क्योंकि उस वेले बच्चे का जन्म नहीं होता नाल मां का भी जन्म होता बच्चे को गोद लैके मां बनना होर गल है बच्चे को जन्म दे के मां बनना होर गल है जदों कि औरत बच्चे को जन्म दे के मां बनती है तो जी परमात्मा की दात है परमात्मा का वरदान है ममता जिद अपना संसार करता है वो उदो ही मिलती है जब बच्चे मां बच्चे जन्म दे के मां बनती है इस संसार आप कहने जन्म मरण परमात्मा के वास्ते असते कहने जीवन भी सारा उन्होंने वास्ते जन्म तो लैके मरण करते जो सफर जिन्होंने अपना जीवन कहते हैं ये भी परमात्मा के वास्ते है ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं जो सुनना देखना ऐसे जग पर जान
सुखना मैंने मित्र, देखना मैंने मदारी की खेड। ये मनुख नूं इस जीवन नूं एक मित्र या मदारी की खेड समझ के कर लें। जैसे जल के बदबूदा उपजे फिरते नीर, ये वही चीज है जीवन जल पानी के डुबरे बनते हैं चले जाते हैं। सो मैं बहुत सोना ना लेता पाया परिवार के बच्चे शामिल होता हाँ कि अरदास करने सकते बादशाह छठी आत्मा करने दिन वास्ते परिवार बल बचना। तुम सारे मोमी परिवार के बच्चे शामिल होना आए हो। मैं परिवार वालों सारे का बहुत धन्यवाद करता हाँ जी। बेनती करते हैं कि हमेशा की जाए प्रार्थना करनी है। बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े कुछ गुरु घर दी रस्मां ने गुरु घर की बख्शिश रूपा देना है। मैं पहला बेनती करांगा अगर अजय सिंह जी को गुरु चरणों में आउण गुरु घर की बख्शिश रूपा प्राप्त करना। बोले